So good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, sir. Okay. So last class, I hope I have started moment of inertia, basics on what factors moment of inertia depends upon, and all these we will discuss today. So I hope everyone should join. Then we'll start. Give me one more minute. So if I just go to revision of last class, can you guys tell me what we have done in last class? In rotation, not center of mass at all. What we have started in rotation. So last day you had discussed moment of inertia for discrete masses. Okay. And what moment of inertia is basically? Tell me guys, what moment of inertia is? Good afternoon, sir. Yes, what moment of inertia is? Sir, have you started the class? So what have you No, done? I'm waiting everyone to join, then we'll start. Okay, sir. Okay. Okay, guys. So those who actually not present in last class, just giving you a quick review. Like if I'm talking inertia, inertia tells you what? Inertia is that property of a body which resists the change in linear state of motion. Inertia resists. Inertia is that property of a body which resists the change. Which resists the change? Which change, guys? In linear motion. So, what is moment of inertia? Can you guys now can make conclusion here? So it plays the role of inertia in rotational motion. It opposes Very good. the change in rotational speed. Or I can say that ki I'm writing. Okay. Moment of inertia. It is a measure of. It is a Sir, are you measure. sharing the screen? Okay, screen actually not coming. Let me share. Okay, no, I have not shared a screen till now. Screen is not coming any further, guys. Just we are talking because I'm waiting everyone to join. Then we will start. Now I hope screen is coming in front of all of you. Guys, screen is coming. Yes, sir. Okay.
So I have written inertia resists the change in linear motion. So what is moment of inertia if someone asks you? So moment of inertia is a measure of its ability. Okay, one student in meeting. Moment of inertia is a measure of its ability to resist change in its rotational motion. Are you getting my point? So if moment of inertia less, what I can conclude? If moment of inertia is less, what we can conclude? The If moment length of of the radius of the body is small. it is easier to rotate the body. Like if I say that solid sphere and hollow sphere, whose moment of inertia is less? What do you think? We are going to discuss today all the things. Solid A sphere or hollow hollow sphere, sphere? hollow sphere. Hollow sphere moment of inertia less. Okay. So that means you are thinking it is easier to rotate hollow sphere, na? But it is wrong. Solid sphere moment of inertia is less as compared to hollow sphere. So it is easier to rotate solid sphere. You can take one example, like you can take a hollow ball and you can take a solid ball. Which it easier to rotate? Can anyone tell me? Solid one. Solid ball, that is solid, moment of inertia is less. We will prove these all things. So if moment of inertia less, what it tells? It is easier to rotate the body. Easier to rotate. Very good. So moment of inertia, I already told you, plays the same role in rotational dynamics as mass in translatory motion. So lesser, I'm writing in a lesser. Achha, MOI means Moment of inertia. easier to rotate. Lesser the moment of inertia, it is easier to rotate the body. Okay. A large moment of inertia, difficult to rotate, but large moment of inertia also helps in keeping the motion uniform. Are you getting my point? We will discuss. So moment of inertia, what is SI unit of moment of inertia? Can anyone tell me SI unit of moment of inertia? I have discussed or not, I don't know, but tell me. Moment of inertia is kg meter square. And dimension is what, guys? Dimension is ml2. SI unit is kg meter square. Dimension is ml2. Acha, tell me, moment of inertia is constant for a body. Is moment of inertia constant for a body? Yes, sir. Because sir, the radius of the body is always fixed. That is why. Okay. My question is moment of inertia a constant for a body? Answer yes or no. How many things yes? No, sir. No, Why? sir, sir, Why sir. no? It is variable. Because sir, different particles have a different radii. So sir, it will vary. So guys, moment of inertia is not a constant. It depends upon axis of rotation. So I'm writing it depends upon axis of rotation. We will prove these all things. It depends upon axis of rotation. Moment of inertia is not constant for
a body like for rod, it is not can be said that ml squared by 12 is the moment of inertia. You just mug up it. I will change the axis of rotation, moment of inertia will change. If I take moment of inertia about the ends of the axis, ml square by 3 will happen. About perpendicular bisector, ml square by 12. So guys, moment of inertia is not a constant for any body. It depends upon axis of rotation. Moment of inertia also depends upon mass. No? Moment of inertia depends on mass. Moment of inertia depends upon axis of rotation. Okay. Apart from that, moment of inertia depends upon what things, guys? Sir, shape, size, density, etc. Very good. I can say that moment of inertia depends upon how mass is distributed from the axis of rotation. Okay, guys. Mass distribution about axis of rotation. Mass distribution about axis of rotation. So moment of inertia is not a constant. First of all, you should keep in mind it depends upon axis of rotation. Moment of inertia also depends upon mass. Not only mass, how mass is distributed. How mass is distributed around axis of rotation. Moment of inertia, these things, these factors affect moment of inertia. Okay. Now guys, if I ask you, okay, in last class I have done moment of inertia of discrete mass system. No? Tell me, like square, cube, this all we have done. No, sir. No, sir. Okay. Now suppose that this is a square of side A. 4 masses kept at its corner, each of mass let it be m, or let it be 1m, 2m, 3m, 4m. Okay. You have to calculate moment of inertia about an axis which is perpendicular to the plane and passing through the center of the square. Perpendicular to the plane and passing through the center of the square. Can you guys tell me? About this axis which is passing through the plane, perpendicular to its plane and center, passing through the center. Try everyone carefully. Sir, can it be m square by 2? Ma square by 2. Okay. What other answers is coming? Let me see. Okay, guys. I hope you have taken enough time.
Now see everyone, these are the few questions which you have to keep in mind. I have to find distance from the axis of rotation. This I hope I have done in last class or not. Let me see. We have done in last class, guys, or not? So this distance sir. is, guys, see, is diagonal is root 2a, na? That this distance is a by root 2. Is it okay? Now all the distance will be a by root 2, a by root 2, a by root 2. So I can write m a by root 2 whole square plus 2m a by root 2 whole square mass into summation of m r square and mi ri square I is equal to 1 to n plus 3m a by root 2 whole square plus 4m a by root 2 whole square. So can I say this is nothing but m plus 2m plus 3m plus 4m, and I can simply write a by root 2 whole square. Na? So this is how much? 2, 3, 6, 10. 10 m a square by 2, that is 5m a square. So can I give you one shortcut? Do one thing, calculate this distance first. Distance square do and add all the masses. Add all the masses. So 10m into distance square is a square by 2, 5a square, 5ma square is the answer. Now guys, if I ask you question which is given in your BM Sharma book, this is very simple for you, m, and m. What is the moment of inertia about the axis of rotation when it is passing through the plane and perpendicular to length and passing through the center? Without pen and paper, if you do, that will be good. Sir, How much? 2m square. 2m square is the right answer. 2m square is the right answer because 1, 2, 3, 4 m. I told you, add the masses a by root 2 whole square. That is 4m a square by 2, 2m a square. Is it okay, guys? Fine. Tell me, guys, tell. Yes, sir. Next thing, suppose this is the discrete mass system. Now, how to calculate moment of inertia for continuous mass system? Continuous mass system. What is the meaning of continuous mass system? Can anyone tell me? What is the meaning of continuous mass system? Constant. Mass is constant. Constant, you cannot say. Mass actually is distributed. Like this is a rod if I'm talking, this is a ring I'm talking. So mass is distributed like everywhere. This is mass, this is mass. Mass is distributed throughout. And here mass. Okay. So these systems are said to be continuous mass system. So in order to calculate moment of inertia of continuous mass system, so for discrete, what we have done, if you remember, for discrete, I have done moment of inertia is equal to summation of mi ri square, I is equal to 1 to n. This summation can be replaced by integration. For continuous mass system, summation will be replaced by integration. So can I simply write moment of inertia for continuous mass system is equal to integration of dm into r square. When you integrate all small masses, you will get moment of inertia about the axis of rotation. Is it okay? So how you will do? Like suppose this is a random shaped body. You have to take a small mass dm.
you have to take a small mass dm, and suppose this is your axis. You have to find this distance from the axis, let it be r. So I will write a small moment of inertia di is equal to what, guys? Dm into r square. Now integrating it 0 to I and 0 Excuse to me, sir. m. Yes. सर कोई शायद वेट कर रहा है. ओके ओके, मैं एक बार इसको एडमिट कर लेता हूँ. अच्छा, ये रकीबुल तो आ गया था पहले भी. डिस्कनेक्टेड. Rakibul, you joined earlier, you got disconnected. Rakibul Rahman, you got disconnected or you joined now? I saw you earlier too. Sir, I got disconnected. Okay, okay. Now tell me, Rakibul, actually up to where you have seen. I'll just repeat faster for you. Sir, I was present. I will hear. Okay. So Rakibul, see, I have discussed this discrete mass system moment of inertia. Shortest trick I told, he add all the masses if they are equidistant from the axis of rotation. If the masses are equidistant from the axis of rotation, add all the masses and take one distance from any mass and square that distance. Okay. Okay, sir. Then for discrete, I'm taking summation. For continuous mass system, this summation will be replaced by integration. So how we will calculate moment of inertia? Suppose this is a random shape rigid body. So I will take the small element dm. So you have to calculate first dm into r square is moment of inertia small di. Then you have to integrate it within a proper limit. I should not write here limit because sometimes it may be limit of x, sometimes it may be limit of anything else. So within proper limit, better to write proper limit. Proper limit. In both cases, we have to take proper limit of lower and upper integral. Okay, guys, till here fine. Can I move to one question? This is a rod. Find moment of inertia of a rod about an axis which is passing through the perpendicular bisector. Moment of inertia of rod about an axis which is perpendicular to the length and passing through center. Moment of inertia rod passing through perpendicular to the length of the rod, or you can say that this is perpendicular bisector. Moment of inertia about perpendicular bisector of the rod. Anything you can write. Moment of inertia about an axis which is perpendicular to the length and passing to the center, or you can say moment of inertia about perpendicular bisector. Fine, guys. Find what is the answer. Moment of inertia about perpendicular bisector.
Sir, ml square by 12. Very good, very good. Those who not solve, don't bother. We will discuss then. Okay, guys, listen. Those who are not very habitual, few question will give you the confidence. So this length is L and mass of this rod is M. So in order to calculate moment of inertia, I have to get this at a distance x. I have to take a strip of thickness dx. I have to take a strip of thickness dx at a distance x. So what I can say that key mass of L length is M. What is the unit length mass? M by L. What is the mass of dx length? Can you guys tell me what is the mass of dx length? M by L into dx. See guys, this M by L is lambda or linear mass density. Linear mass density. So can I say that now this is nothing but dm. This is a small dm mass. Now moment of inertia, I can write integration of dm into x square because r is nothing but here x only. So I'm substituting the value m by l into dx x square. Na? So can I rearrange and write it? This is nothing but di. Integrating it from 0 to I, integration limit. Who is going to tell me limit? Because this is the important portion which we may have discussed earlier also. What is the limit, guys? Sir, L by 2 to minus L, minus L by 2 to L by 2. Minus L by 2 to L by 2. See guys, if this I have taken origin, this coordinate will be L by 2 with negative sign, comma 0. And this coordinate will be L by 2, comma 0 with positive sign. Okay. So now can I say that key integration limit will vary from minus L by 2 to L by 2. Now can you guys solve this integration? Can you guys solve this integration? Sir, ml square by 12 what है? एम स्क्वायर बाय 12 इज द राइट आंसर. सर ने कर लिया बच्चों. जिनको नहीं हुआ देखिए ध्यान से. m बाय एल को मैंने बाहर कर लिया. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स क्यूब बाय 3 आएगा बच्चों. माइनस एल बाय 2 टू एल बाय 2. आई विल टेक m बाय एल आउटसाइड हियर. जब अपर लिमिट पुट करोगे बच्चों आप 3 भी बाहर कर लो ये आपका. तो एल क्यूब बाय 8 होगा माइनस लोअर लिमिट बाहर करोगे बच्चों एल क्यूब बाय 8 होगा. So when you will add this, so this will be m by 3l into l cube by 8 plus l cube by 8. Can I say l cube by 4? This cancel this l square. m l square by 12. But my point is that कि अगर मैंने रॉड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से ना निकाल के इसके एंड के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला तो व्हाट द चेंजेस यू विल डू इन लास्ट क्वेश्चन?
So the limit will change. सर एल से माइनस एल हो जाएगा। सोच लो लिमिट में सिर्फ चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सर 0 to L होगा लिमिट। 0 to L होगा, सिंपल है बच्चों ने। देखो अब मैंने क्या बोला, x पे गए हम लोग, dx का स्ट्रिप लिया बच्चों। x कहां से कहां तक वेरी करेगी, देखो यहाँ पे चांसेस क्या थे x के बच्चों, x लेफ्ट में माइनस एल बाई टू तक जा सकता है, यहाँ तो लेफ्ट तो जीरो ही है बच्चों, तो इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to L हो गया। अब बता दीजिए आंसर क्या होगा बच्चों। एम स्क्वायर बाय 3। वेरी गुड, तो बच्चों हमने फिर से डी लिखा। बट तो मैं सर डायरेक्टली इस बार हम लोग क्यों जीरो से एल ले रहे हैं। पिछली बार तो हम लोग एल बाय टू से माइनस एल बाय टू लिए थे, तो इस बार क्यों जीरो से एल लिए हैं। हाँ, क्यों ऐसा, ये क्वेश्चन आपका है ना। हाँ सर। सुनिए बच्चों, पिछली बार एक्सिस ऑफ रोटेशन ये था ना, पिछली बार एक्सिस ऑफ रोटेशन ये था ना, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहां से डिस्टेंस हमने एक्स लिया था ना, तो जब इसको ओरिजिन मान लिया आपने, तो उसके लेफ्ट साइड को माइनस एल बाई टू कमा जीरो बोलेंगे, इसके राइट साइड को एल बाई टू कमा जीरो बोलेंगे, तो लिमिट कहां से कहां तक होगी, माइनस एल बाई टू से एल बाई टू तक। एक्सिस ऑफ रोटेशन को आपने ओरिजिन पकड़ लिया, तो ये कोऑर्डिनेट एल कॉमा जीरो हो जाएगा, हाँ या ना बोलिए तो लिमिट जीरो से एल तक लेंगे इसकी, जीरो से आई तक। ये तो आई हो गया बच्चों, एम बाय एल एक्स क्यूब बाय थ्री, 0 to L, putting the value ml square by 3। अब जो मैंने आज के क्लास की कुछ पॉइंट्स बोले थे बच्चों, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का ही हमने निकाला बच्चों। पहले केस में रॉड के किस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से पास कर रहा था बच्चों, वो एक्सिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थी रॉड की। दूसरे केस में हमने कहा निकाला बच्चों, जो एंड से पास करेगी। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर एम एल स्क्वायर बाय 12 था, यहाँ एम एल स्क्वायर बाय 3 थी। तो इसीलिए बच्चों मैंने ये पॉइंट लिखा है, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया depends upon axis of rotation. Moment of inertia is a constant for a body? No, it depends upon axis of rotation. क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोग को बच्चों। हाँ। चलिए अब बच्चों मैं एक थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन देता हूं आपके लिए, जो जेई मेंस ने पूछा था। आर यू गाइस रेडी। अगर रेडी हैं तो मैं दूंगा, नहीं तो मैं नहीं दूंगा बच्चों। आप रेडी हैं। हाँ सर। ट्राई करते दीजिए। चलिए बच्चों, बिल्कुल ट्राई करना ही स्टूडेंट का मेन होना चाहिए बच्चों। मान लीजिए बच्चों, अब ये रॉड ले लिया हमने, ठीक है ना। इस बार रॉड का हमने थीटा एंगल दे दिया बच्चों, लेंथ एल मास एम, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। चलिए तो बच्चों मैं जानना चाहता हूँ आप लोग कैसे निकालते हैं। इसमें अगर बच्चे निकाल लिए, मेरा दो रॉड का ऊपर वाला बताना सफल है। अगर नहीं निकाल पाए कोई बात नहीं बच्चों, हम लोग सीखेंगे। चलिए सर किसके अबाउट पूछना है? कौन सा आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन लग रहा है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये रॉड है लेंथ एल का, इसका मास है एम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालनी है उस एक्सिस के अबाउट जो व्हाइट से आपका कलर है, ठीक है ना। क्लियर। चलिए बच्चों मैं देखना चाहता हूँ कैसे निकालेंगे आपको। मुझे यकीन है कुछ बच्चे निकाल लेंगे, कुछ बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होंगे, तो इसके बाद उनका कंटेंट क्लियर हो जाएगा। सर एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा।
ml स्क्वायर बाय 3 साइन स्क्वायर। राजा थीटा को 0 रखो तो आप, थीटा को 0 रखो तो, यस सर 0 आ रहा है। अच्छा थीटा को 90 रखो तो यस सर ml स्क्वायर बाई 3। तो मतलब आपका तो आंसर सही है बच्चों। ml स्क्वायर बाय 3 तो आता था जब आपका 90 डिग्री था थीटा, ठीक है ना? हाँ योर आंसर इज करेक्ट। ओके, ml स्क्वायर बाय 3 साइन स्क्वायर थीटा। चलिए बच्चों, तो एंगल पे भी डिपेंड कर गया ना, देखिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर हमने इंक्लिनेशन को चेंज किया तो एंगल पे भी डिपेंड हो गया ना बच्चों, इसलिए सिंपली हम मास नहीं बोल सकते। हाउ मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज इंपॉर्टेंट पैरामीटर, ठीक है बच्चों? तो यहाँ से बच्चों क्या आपका ये पॉइंट भी जस्टिफाई हो गया क्या? मैंने जो पॉइंट लिखा था बच्चों कि हाउ मास मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, अर्लियर में बच्चों आपका मास डिस्ट्रीब्यूशन था हॉरिजॉन्टल के अलोंग, इस बार हमने थीटा के इंक्लाइन कर दिया बच्चों। तो ये दोनों चीजें क्लियर हो गई बच्चों क्या? यस सर। तो मैं बोल रहा हूँ, फिर से सुनिएगा बच्चों ध्यान से कि सर फिर से हम यहाँ से जाते हैं एक्स डिस्टेंस पर, फिर से सर हम यहाँ से जाते हैं एक्स डिस्टेंस पर। मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ बच्चों। हम जाते हैं सर यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर, dx का स्ट्रिप लेते हैं सर। अच्छा बच्चों, अगर मैं लिखना चाहूं तो इसका मास, तो आप बोलेंगे सर एल लेंथ का मास m, यूनिट लेंथ का मास m बाय एल, यूनिट लेंथ का मास m बाय एल, और dx लेंथ का मास m बाय एल इंटू डी एक्स। अब मुझे बच्चों एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस मास का डिस्टेंस देखना है, जिस dm का क्या होगा, कोई बच्चा मुझे बताएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से dm मास का डिस्टेंस? So x sin एक्स theta. साइन थीटा। वेरी गुड बच्चों, आपको ये डिस्टेंस देखना है। मैं थीटा को थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से। आपको ये डिस्टेंस देखना है बच्चों, ये डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस। तो आपने बोला सर ये एक्स है, ये थीटा है, एक्स का कंपोनेंट एक्स साइन थीटा होगा सर ये, ठीक है ना? तो बच्चों अब क्या था, अब आपको इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम लिखना था। एक्स आपका जो है एक्स साइन थीटा है, एक्स और डीएम क्या है बच्चों यहाँ पे? डीएम तो आपका m बाय एल इंटू डी एक्स है, ठीक है बच्चों? लेकिन आप बोलते हैं सर इसका तो स्क्वायर होता है ना, एक्स डीएम, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। बच्चों देखिए मैंने अभी तक जो लिखा है डीएम इंटू एक्स स्क्वायर में एक्स की वैल्यू एक्स साइन थीटा हो तो उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना? एक्स की वैल्यू एक्स साइन थीटा हो तो उसका स्क्वायर कर देंगे बच्चों, ठीक है? अब मैंने बच्चों कांस्टेंट को बाहर ले लिया, m को बाहर ले लिया, l को बाहर ले लिया, इवन साइन स्क्वायर थीटा को बाहर ले लिया। तो बचा क्या बच्चों मेरा? एक्स क्यूब बाय 3, कैसे? एक्स स्क्वायर बचा ना बच्चों dx, एक्स स्क्वायर बाय dx का इंटीग्रेशन करोगे एक्स क्यूब बाय 3, 0 से l, m साइन स्क्वायर थीटा बाय l इंटू एल क्यूब बाय 3 है, ठीक है बच्चों? देखिए तो इससे ये कट गया, तब वो क्या आ गया, एम एल स्क्वायर बाय 3 साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एट एन एंगल थीटा। अब यहाँ 45 डिग्री या 60 डिग्री कुछ भी निकाल सकते हो, यू कैन एम एल स्क्वायर बाय 3 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े। यस सर। चलिए अब सुनिए बच्चों, अगर हमें निकालना हो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिंग, चलिए बच्चों बताइए रिंग का कैसे निकालें? सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। हाँ सॉरी, सेंटर ऑफ मास मैंने गलती से लिख दिया बच्चों, वो टॉपिक चल रहा था ना बहुत दिन से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास तो रिंग का बच्चों सेंटर पे ही लाई करता है, और अगर आपका हाफ रिंग हुआ तो कहाँ सेंटर ऑफ मास आगे रहेगा बच्चों?
इसी बहाने रिवीजन के लिए भी पॉइंट पूछ लिया मैंने। हाफ रिंग होगा तो कहाँ सेंटर मास लग रहा है बच्चों, भूल गए सब आप 2r लोग? by pi. 2r/π इज द राइट आंसर, वेरी गुड। और अगर डिस्क हो तो बच्चों So देखो 4 by सब 3 pi by r. 4r/3π, वेरी गुड। हॉलो हेमिस्फीयर हो तो, So r by 2, comma 0. एंड सॉलिड हो तो सर याद नहीं वो। 3r/8। ठीक है बच्चों, तो जैसे मुझे याद है वैसे आप भी याद कर लेना, ठीक है ना? क्योंकि मैंने तो निकलवाया है बच्चों, बाद में मुझे उसको याद भी कर लेना पड़ेगा, तो कर लेना चाहिए बच्चों आप लोगों को, ठीक है ना? चलिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग पासिंग थ्रू, अच्छा कौन से एक्सिस से पास कर रहा है बच्चों, देखिए जरा। रिंग अगर मैंने ऐसा लिया है, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। कैसे निकालो बच्चों रिंग का? आसान है बच्चों, देखिए यहां से मैं गया आर डिस्टेंस पे, यहाँ पे मैंने एक डीएम मास का एलिमेंट पकड़ा, तो आप बोलोगे सर ये जो डीएम मास है इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहेंगे आप, उसको आप लिखिए DI DM इंटू r²। डाउट बच्चों यहाँ से किसी को देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। मैंने क्या किया बच्चों, छोटा सा स्टेप पकड़ा आर डिस्टेंस ले जाके, वो डीएम इंटू r² मैंने किया है। अब सुनिएगा ध्यान से बच्चों, व्हाट इज डीएम? यहाँ पे भी हम लोग लेमडा लेंगे, लेमडा मतलब मास पर यूनिट लेंथ। यू नो दैट 2πr का मास m है बच्चों, यूनिट का मास m/2πr, एंड आपको निकालना था किसका बच्चों? डीएम आपको का। निकाल, तो आप बोलेंगे सर यूनिट का इतना है आपका, तो सर ये तो आपका डीएम है सर, इसमें क्या करने वाले हैं? तो बच्चों आप लिख सकते थे उसको, बट मैंने एक और लॉजिक ढूंढा इसके लिए। सब आसान लॉजिक क्या है, बोले सर DI तो मेरा होता है सर डीएम इंटीग्रेशन ऑफ r² ना सर। सर एक काम कीजिए, 0 to I ना, यहाँ पे R की डिस्टेंस कांस्टेंट है हर मास से सर, r² को बाहर कर लीजिए सर, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएम कर दिया सर 0 से लेके कैपिटल M तक। तो आप बोलोगे सर दिस इज, तो M हो गया मास इंटू r², दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिंग इज mr²। क्लियर है बच्चों? जो बच्चे इस मेथड से करना चाहते हैं वो बच्चे लिख सकते हैं बच्चों, अगर ये थीटा एंगल है तो r थीटा लेंथ का मास कितना हो जाएगा बच्चों? तो आप लिखोगे m/2πr इंटू r थीटा, r से r कट गया, m/2π इंटू थीटा, m/2π इंटू थीटा, यही तो डीएम बचाना बच्चों आपका, यही तो डीएम बचाना। अब आप लिखेंगे डीएम इंटू r², इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, डीएम इंटू r² इंटीग्रेट करेंगे। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे इंटीग्रेशन में लिमिट क्या रखेंगे? पहले मैं डीएम को m/2π रख दूं बच्चों, r² थीटा। अब आप को मैं बोलूं बच्चों कि थीटा ही तो यहाँ वेरी कर रहा है बच्चों, थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? m कांस्टेंट, 2π कांस्टेंट, r² कांस्टेंट। थीटा कहाँ से 0 से लेकर 2π तक वेरी करेगा बच्चों? थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? 0 से लेकर आप 2π तक लिखेंगे, तो ये आपका हो गया बच्चों DI 0 to I, इंटीग्रेशन तो I हो गया बच्चों, m/2π r² इंटू 2π होगा ना बच्चों माइनस 0, लिमिट जब पुट करो थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, mr² हो गया फिर से, दैट इज द थिंग। सर आप थोड़ा ऊपर का पोर्शन एक बार दिखा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे से आप लोग नोट कर दिए बच्चों, कहीं पे मिस नहीं करना। सर सेकंड मेथड एक और बार एक्सप्लेन करेंगे? चलिए सेकंड मेथड में एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों, सुनिएगा ध्यान से।
अच्छा, बुक में आपको ना एक ही मेथड दिया रहेगा, तो मैं आपको 2-3 मेथड इसलिए बताता हूँ बच्चों, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी ना तो आप अलग मेथड से सोच सकते हैं। सेकंड मेथड के सुनिएगा ध्यान से बच्चों, मैं फिर से बना ही देता हूँ आप लोग के लिए। चलिए, यहाँ से मैंने बोला आर पे गए आप, और यहाँ पे थीटा पे जाके आपने एक एलिमेंट पकड़ लिया, ठीक है बच्चों। तो आप बोलोगे सर ये तो लेंथ आर थीटा हो गई ना सर, ये लेंथ आर थीटा हुई कि नहीं बच्चों, बताओ तो। थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर होता है ना, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर होता है ना। तो ये लेंथ एल निकालना था आपको, तो ये आर थीटा हो गया क्या बच्चों। अब मैंने बोला बच्चों, अगर 2 पाई आर का मास कैपिटल एम है, तो यूनिट का मास क्या हो जाएगा बच्चों, एम बाय 2 पाई आर ना। और मुझे किसका चाहिए बच्चों, आर थीटा का मास चाहिए, तो एम बाय 2 पाई आर इंटू आर थीटा। इसमें कोई डाउट क्या, यहां तक देखो तो। ना तो ये जो, कोई डाउट है क्या बच्चों इसमें, बोलिए बोलिए, नो सर। कोई डाउट है क्या। ये बच्चों हो गया मेरा डीएम। अब मुझे क्या करना है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू आर स्क्वायर करना है ना बच्चों। तो मैंने बोला ठीक है, अगर डीएम इंटू आर स्क्वायर करना होगा सर, तो डीएम की वैल्यू रख दें हम। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने निकाला है बच्चों, वही क्या है, डीएम इंटू आर स्क्वायर, वही क्या है बच्चों, यहाँ पे भी वही कर रहा हूँ, सुनिएगा। डीएम की जगह एम बाय 2 पाई इंटू आर स्क्वायर थीटा पुट करूं क्या, डीएम की जगह पे डीएम बाय आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे आर डी थीटा हो जाएगा बच्चों, ये आर डी थीटा हो जाएगा ना। आर डी, यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया, यहाँ पे मिस्टेक किया कि आर डी थीटा वाला, आर डी थीटा है ना बच्चों। थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लोगे बच्चों आप, थीटा पे जाके ना डी थीटा का एलिमेंट लोगे, तो ये स्ट्रिप क्या हो जाएगी बच्चों, आर डी थीटा, आर डी थीटा। ये मैंने फिर से लिख दिया इसको, आर डी थीटा। थीटा पे गए और डी थीटा के, ये एलिमेंट का मास में मतलब, यहाँ पे भी मैंने वही गलती की है। ये देखो, थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लिया बच्चों, डी थीटा, ठीक है ना। तो अब मेरा मास क्या हो गया बच्चों, आर डी थीटा का मास, आर डी थीटा का मास एम आर डी थीटा, इससे कर दिया ये ना बच्चों, ये बच्चों डी थीटा है, दिस इज डी थीटा। अब देखो, सारे के सारे कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं, एम आर स्क्वायर बाय 2 पाई को कांस्टेंट बाहर कर लिया हमने। इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, थीटा की लिमिट कहां से कहां तक बच्चों, थीटा की लिमिट कहां से कहां तक। तो आप बोलोगे सर थीटा की लिमिट 0 से लेके 2 पाई तक हो सकती है, तो थीटा की लिमिट 0 से लेके 2 पाई तक हो सकती है बच्चों। तो एम आर स्क्वायर बाय 2 पाई, इंटीग्रेशन थीटा आ गया बच्चों 0 से 2 पाई, एम आर स्क्वायर बाय 2 पाई इंटू 2 पाई, एम आर स्क्वायर हो गया बच्चों। तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गई एम आर स्क्वायर। यहाँ पे जो बच्चे नोट किए हैं, ये डी थीटा होगा बच्चों, डी थीटा, तभी तो थीटा लिख सकते हैं हम उसको, डी थीटा है ये, डीएम, ये डी थीटा है बच्चों, ये मिस्टेक थी, वो आर डी थीटा था, आर डी थीटा था बच्चों, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आई आप लोग को क्या। जी सर। हाँ सर, मैं वही कंफ्यूजन था कि आपने वो थीटा लिया था। ओ नहीं, वो गलती थी ना, मेरी मिस्टेक थी, मैंने बच्चों डी थीटा, जब भी आप थीटा पे जाके डी थीटा, देखिए बच्चों एक्स पे जाके क्या लेते हैं हम जरा देखिए तो, डी एक्स स्ट्रिप लेते हैं ना, एक्स पे जाके डी एक्स स्ट्रिप लेते हैं ना, तो थीटा पे जाके डी थीटा नहीं लेंगे, समझ में आ रहा है आपको क्या। तो थीटा पे गए आप, को डी थीटा लेना है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों। यहाँ तक कोई डाउट क्या, अब अभी कोई डाउट बच्चों, देख लीजिए एक बार। मैंने थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लिया, जिसकी आर्क लेंथ हो गई आर डी थीटा, आपको एम बाय 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा करना था। यहां से बच्चों हमने एम बाय 2 पाई डी थीटा कर दिया, इंटीग्रेट करने के बाद आपकी जो वैल्यू आई वो ये है, ठीक है बच्चों क्या। यस सर। अब मैं एक काम करना चाहता हूँ बच्चों, यहाँ पे जरा देखिए तो, ये आपका है रिंग, ठीक है, पहले मैं रिंग बना लेता हूँ। अभी मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट पूछा ना आपसे, अभी मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट पूछा ना। अब मैं बच्चों चाहता हूं आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाली एक्सिस के अबाउट निकालिए। मतलब कौन सी एक्सिस है बच्चों, ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए।
लॉजिक से बताओगे मुझे कैसा होगा, मतलब चलिए आप लोग ट्राई कीजिए पहले। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेगा which is diameter of the ring. सर क्या ये एम स्क्वायर बाय 12 हो सकता है? हम्म एम स्क्वायर बाय 12। नहीं बच्चों, ये रिंग है, वो तो आपका एम स्क्वायर बाय 12 जो होता है वो तो रॉड के लिए होता है। सर एम स्क्वायर बाय 4। सोच लो एक बार अच्छे से बच्चों। जो क्वेश्चन आपके बाद में मैं आसान लगने लगेंगे, अभी थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। कोई बच्चा बताएगा क्या? So m r square by 2. कैसे? The perpendicular चलिए आपका axis आंसर theorem. सही है, लॉजिक बताइए। The perpendicular axis theorem. नो, वो थ्योरम तो अप्लाई नहीं करना है बच्चों की ना। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सही है आपका, उसके आंसर से एम आर स्क्वायर बाय 2 इज द राइट आंसर, बट दैट इज नॉट टू बी यूज्ड राइट नाउ ना। मुझे और कुछ मेथड से सोचना पड़ेगा ना बच्चों। चलिए बच्चों, कोई भी लॉजिक बताइए। मुझे लॉजिक चाहिए, कैसे मैं निकाल सकता हूँ इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। So can we take the center as an origin and take the distance of any element as r sine theta and do it? सेंटर यू आर what you want to take center as origin, Yes, sir. take it and another part. And so then we can take the distance of the element from the axis of rotation as r sine theta. आप यहाँ पे लीजिए। अब ये डिस्टेंस आप क्या लेना चाहते हो? So जो distance होगा from the diameter वो तो r sine theta होगा ना? मतलब ये बोल रहे हो आप ना? हाँ, yes sir. वेरी गुड, ये आपने आर लिया है बच्चों, ये एंगल थीटा लिया है, तो ये आर साइन थीटा होगा। बहुत अच्छे, ठीक है बच्चों। अब सोचिए, यही तो लॉजिक लगाना है बच्चों, लॉजिक लगाइए सारे बच्चे। अब क्या करोगे बच्चों? ठीक है, आपसे हो जाएगा, बताइए।
चलिए बताइए बच्चों अब क्या होगा। सोचिए सोचिए, आप लोग सोचिएगा तभी तो आपको लॉजिक समझ में आएंगे बच्चों। चलिए बच्चों बताइए क्या आया, यहाँ तक के बाद क्या किया आपने। कोई बच्चा बताओ, मैं टाइम दे रहा हूँ आपको बच्चों, क्या आप सोच रहे हो, आप लोग टाइम पास तो नहीं कर रहे हो ना। जिससे इसका लीनियर मास डेंसिटी तो m/2 पाई होगा ना, मतलब मास पर यूनिट लेंथ। ऑलवेज देखिए मास पर यूनिट, आपको लेंथ सरकमफ्रेंस लेना है तो m/2 पाई हो जाएगा, ठीक है। सर मेरे को लॉजिक है एक मन में, बट कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रहा है आई थिंक। बोलिए बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन आएगा, पहले बताइए। अच्छा, फिर पहले आपने जो बोला जो लैम्डा है वो m/2 पाई है। ठीक सो है। और डीएम अगर एलिमेंट ले कोई भी, डीएम का हम्म। लेंथ होगा आर डी थीटा, जो लास्ट ठीक है, टाइम भी आर देखा। डी थीटा पे हाँ जाके सर। डी थीटा का स्ट्रिप ले लिया आपने, ठीक है। हाँ सर। सो हाँ। डीएम, सो हमारा क्या डीएम खोजना है, तो डीएम इज लैम्डा आर डी थीटा। सो हम्म। जो कि है m/2 पाई इंटू आर डी थीटा। ठीक है। वो मेरा है m/d θ/2 पाई, वो डीएम का मास। डीएम का मास एम, ये आर से आर कट गया, m/d θ/2 पाई, ठीक है। हाँ सर। अभी हमें ठीक। इंटीग्रेट करना है डीएम इंटू आर आर स्क्वायर। ठीक है। सो यहाँ पर एम इंटीग्रेशन ऑफ m/d θ/2 पाई इंटू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि वो है हमारे वो डिस्टेंस। ठीक है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हाँ सर, यही पर मेरा कैलकुलेशन का गड़बड़ है, मेरे को पता नहीं मतलब हाउ डू वी डू दिस वन। अब आपने क्या किया, यहाँ पे m/2 पाई इंटू डी थीटा लिखा सर है बच्चों, ठीक है ना। आंसर हाँ। क्या ये हो सकता है? a r sin² θ/2। mr² θ/2। नहीं, a r sin² θ/2। mr sin² θ, एक सेकेंड, आप mr, ना ना ना, सुनिएगा सुनिएगा, इस बच्चे ने जो बोला इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आपने बोला r² sin² θ, ठीक है ना। हाँ सर। इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक लोगे आप। सर 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई, ठीक है। अब बच्चों आप इसको इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम आ रही है क्या आपको। हाँ सर, यही पर गड़बड़ हुआ है। mr² बाय 2 पाई को आपने बाहर भी ले लिया, चलिए कांस्टेंट है, ठीक है ना। हाँ सर। तो अब आपका sin² θ का इंटीग्रेशन करने के लिए आप इसको 1 - cos 2 θ/2 लिख सकते हो क्या। अ, अच्छा। साइन हाँ ये सर। साइन, क्योंकि देखिए साइन स्क्वायर। cos² θ माइनस sin² θ क्या होता है बच्चों आपका, cos 2 θ होता है ना। तो आपने बोला कि सर अगर मैं इसको 1 - sin² θ लिखूं माइनस sin² θ लिखूं, तो सर 1 - 2 sin² θ हो गया इज इक्वल टू cos 2 θ ना। 1 - cos 2 θ/2 हो गया ना, ये ठीक है। अच्छा। ये सर। अब ये डी थीटा है बच्चों, ठीक है ना। अब आपने क्या बोला कि सर इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो बच्चों mr² बाय 2 पाई तो ठीक है। अब इंटीग्रेट कर किया जब आपने, तो 1 का इंटीग्रेशन थीटा 1/2 को बाहर कर दो बच्चों, तो थीटा माइनस इसका क्या हो जाएगा बच्चों, cos 2 θ का sin 2 θ/2 होगा ना, देखिए तो
0 से 2 पाई बच्चों क्या? सर 1 का इंटीग्रेशन थीटा हो गया यहाँ पर। हाँ, वन का इंटीग्रेशन थीटा होगा ना बच्चों, क्योंकि देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा है ना वो टर्म 1। अच्छा मैं फिर से लिख देता हूँ, देखो सुनिए ध्यान से। 1/2 इंटू डी थीटा है ना बच्चों, माइनस कॉस 2 थीटा/2 इंटू डी थीटा है ना। तो 1/2 इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा नहीं हो जाएगा, थीटा पावर 0 इंटू डी थीटा, इंटीग्रेशन फॉर्मूला थीटा पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, ठीक है ना। इसलिए थीटा है। समझ में आ रहा है क्या यस सर। कि कंफ्यूजन है थोड़ा सा? सर वही वो थीटा का पार्ट समझ में आया, वो बाकी का ठीक। /4। अच्छा ये थीटा कैसे लिखा मैंने, ये समझ में नहीं आया आपको, यही ना? हाँ सर वही। अच्छा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x dx आप मुझे बता दो क्या होता है? सर वो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x। हाँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx, यही लिखते हैं ना बच्चों आप? हाँ यस सर। 1 को मैं x⁻0 dx लिखूंगा क्या? तो ये x⁻0 + 1 अपॉन 0 + 1 नहीं हो गया क्या? यानी कि x नहीं हो गया क्या 1 का इंटीग्रेशन? समझ में आया आपको? हाँ यस सर। अच्छा चलो, d/dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? सर 1। तो बच्चों इंटीग्रेशन ऐसा करोगे ना, dx लिखा इधर आपने, 1 इंटू dx इंटीग्रेट करोगे क्या? इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन कैंसिल कर दिया बच्चों, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया क्या? अभी भी डाउट? तो सर डाउट नहीं है, फिर वहां पर अगर वो स्प्लिट करेंगे तो वो हाफ हाफ डी थीटा का इंटीग्रेशन है ना, सो शुडंट दैट बी थीटा/2? अभी अभी रुकिए रुकिए रुकिए, मैं पहले इसको क्लियर कर देता हूँ। हाफ में मैंने 2 तो बाहर कर लिया ना बच्चों, हाफ देखो इधर, इस हाफ में मैं 2 को बाहर कर चुका हूं, तब तो यहाँ पे बच्चों मैंने 2 इंटू 2 पाई लिखा है, देखिए तो इस हाफ का 2 को बाहर कर चुके हैं ना बच्चों हम लोग, तब ना बच्चों 1 का इंटीग्रेशन थीटा और cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन। अच्छा sin 2 थीटा बाय 2 इसका इंटीग्रेशन होता है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा डी थीटा क्या होता है बच्चों? sin 2 थीटा बाय 2, ठीक है ना? अच्छा गॉट इट सर, तब ठीक है। अच्छा ये कंफ्यूजन था क्या तुम्हें? हाँ सर वो sin 2 थीटा/2 है, पर थीटा में 2 नहीं है इसलिए वो। नहीं बच्चों, इंटीग्रेशन कैसे होता है इसका cos 2 थीटा का, ये समझा दूं क्या आपको? देखिए बच्चों, पूछिए, पूछेंगे तो आपके हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकलेगा। cos 2 थीटा थीटा ने, मैंने 2 थीटा को x ले लिया बच्चों, ठीक है, मान सकते हैं 2 थीटा को x ना। तो अगर मैंने 2 थीटा को x ले लिया बच्चों, तो 2 डी थीटा बाय डी एक्स का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 होगा ना बच्चों, ये ठीक है बच्चों। 2 थीटा को हमने x लेट, 2 थीटा भी x, तो 2 इंटू डी थीटा डी एक्स। तो बच्चों यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा कि सर आप यहाँ पे डी थीटा को dx/2 लिख सकते हैं, ठीक लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों? देखो तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में बच्चों, देखिए डिफरेंशिएट, ये आप पढ़ोगे इंटीग्रेशन मैथ्स में पढ़ोगे बच्चों, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया 2 डी थीटा बाय डी एक्स, इस x का डिफरेंशिएशन 1 ना बच्चों, तो डी हाँ थीटा यस। को आपने ऐसा लिखा। अब देखिए cos 2x का हमने x माना है, और डी थीटा मेरा dx/2 हो गया बच्चों, 1/2 को बाहर कर दो, cos x का इंटीग्रेशन sin x हो गया बच्चों, x की जगह पे आप थीटा पुट कर दो, इसलिए sin 2 थीटा/2 इंटीग्रेशन होता है इसका। क्लियर है अभी भी की अभी डाउट? नहीं नहीं सर गॉट इट। बच्चों पूछिए, आप पूछेंगे तो मेरे पास आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, नहीं होगा तो मैं पढ़ के बताऊंगा बच्चों। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम द मोस्ट डेलीगेंट और मैं मोस्ट हार्ड वर्किंग टीचर, बट यस आई ट्राई माय लेवल बेस्ट सो दैट कि आपको मैं चीजें को समझा सकूं। यहाँ तक अभी कोई डाउट बच्चों? मैंने फिर से बता रहा हूँ, मैंने 2 को बाहर लिया बच्चों यहाँ से, ठीक है ना, ये 2 मेरा बाहर आ चुका है, तभी मैंने इसको 2 इंटू 2 पाई लिखा है, ठीक है बच्चों, 2 इंटू 2 पाई तब लिखा है हमने। अब 1 का इंटीग्रेशन थीटा साइन 2 थीटा का, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा/2, अब लिमिट पुट कर रहा हूँ बच्चों, देखिएगा 2 पाई हो गया क्या बच्चों, ये माइनस cos 4 पाई भी 0, cos 0 भी 0, तो लिखने की जरूरत है क्या बच्चों मुझे? तो बच्चों देखो आंसर क्या आ गया आपका, ये 2 पाई से 2 कटा, mr²/2 आ गया बच्चों। किसी भी बुक में ये डेरिवेशन नहीं दिया है आज तक बच्चों, लेकिन आपको मेरे हिसाब से कुछ हद तक समझ में आई होगी चीजें बच्चों। देखो तो इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में तोड़ के बता देते हैं कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोलता है I Z
प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई एक्स और आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड। लेकिन मुझे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करने से पहले कुछ चीजें जान लेनी चाहिए बच्चों ने, और ये चीज मैंने आपको बताई। ठीक है, क्लियर है क्या ये पॉइंट? किसी को डाउट क्या? अब आपका डाउट क्लियर हुआ? कहाँ कंफ्यूज थे आप? हाँ ये सब इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम हो रहा था। बच्चों अच्छा, कोई बच्चा मुझे समझाएगा क्या? ये इंटीग्रेशन में पूछना चाहता हूँ आप लोग से, कोई बच्चा मुझे समझाएगा क्या मैंने किया क्या? आपके सामने स्क्रीन है, ट्राई टू मेक। कोई बच्चा ट्राई करो बच्चों, कोई बच्चा ट्राई करो। कोई नहीं। सो ये तो हमने बहुत मतलब थीटा डिस्टेंसेस हमने बहुत स्मॉल एलिमेंट्स लेके उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंडिविजुअली कैलकुलेट किया और उन्हें इंटीग्रेट करके वी गेट द फुल थिंग। वही तो वी हाँ हैव डन यहाँ पर। बच्चों, हमने यहाँ पे एक ही चीज ध्यान रखी कि हमें एक्सिस के परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस लेनी है डीएम, ठीक है ना बच्चों? तो मैंने ये जो डीएम पकड़ा है छोटा सा एलिमेंट, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आर साइन थीटा लिया। बच्चे अक्सर यहाँ पे आर स्क्वायर करके गलती कर देते हैं बच्चों। तो ये आपका है डीएम, ये आपका है डीएम, और ये आपका है परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर साइन थीटा। इसके बाद आपने इंटीग्रेशन किया है एंड यू गेट दिस रिजल्ट। आगे बढ़े बच्चों हम लोग क्या? सर आप थोड़ा वापस से वो वार माइनस कॉस थीटा बाई टू का वो इंटीग्रेशन कैसे हुआ था दिखा देंगे? सुनो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा में कंफ्यूजन है आप लोग को, ठीक है बच्चों? इसी का इंटीग्रेशन तो मैंने लिखा है, ये वाला टर्म, ठीक है? तो हाँ सर। साइन स्क्वायर थीटा को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, मैं चाहता हूं एक और लॉजिक बताना आप लोग को बच्चों। अगर आप लोग अग्री करेंगे तो मैं वो लॉजिक बता दूं आपको, यहाँ पे रुकिए, चलिए सुनिए ध्यान से। अच्छा बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बताइए तो? कॉस टू थीटा होता है, हाँ या ना बोलो तो इसको बच्चों वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं इक्वल टू कॉस टू थीटा। तो बच्चों वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस टू थीटा हुआ क्या? तो मुझे चाहिए बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस कॉस टू थीटा बाय टू हो गया क्या साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने बच्चों इस साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दिया, इस साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दिया बच्चों मैंने वन माइनस कॉस टू थीटा बाय टू इंटू डी थीटा से। क्लियर है? इस साइन स्क्वायर थीटा को मैंने रिप्लेस किया, मैंने पूरी कहानी सुना दी आपको। क्लियर है क्या? हाँ सर। अब बच्चों में बोलना चाहता हूं, इस टू को बाहर ले लिया हमने, ठीक है ना? बचा क्या? वन इंटू डी थीटा माइनस कॉस टू थीटा डी थीटा, ठीक है? ये बचा ना बच्चों? वन का इंटीग्रेशन बच्चों हो गया थीटा, और कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन हो गया साइन टू थीटा बाय टू बच्चों। लिमिट थी जीरो से लेके टू पाए, अपर लिमिट रखा बच्चों तो टू पाई माइनस जीरो हो गया ये, लोअर लिमिट रखा तो जीरो माइनस जीरो हो गया बच्चों, ये वन बाय टू था, इससे ये कट गया तो पाई यहाँ पे था, और यहाँ पे बच्चों तुम्हारा m बाय टू पाई पहले से था, इस टू पाई से टू पाई भी कट गया, यहाँ पे आर स्क्वायर था बच्चों, एम आर स्क्वायर बाय टू, ठीक है ना बच्चों? डाउट अभी भी? चलिए बच्चों, ये सब चीजें मैथ्स की चीजें हैं, फिजिक्स वाले टीचर को नहीं बतानी चाहिए, पर ठीक है आप लोगों को कंफ्यूजन है तो बता देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब मैं बात करता हूं बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू स्पेलिंग गलत है, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ठीक है बच्चों, जो सेंटर से पास हो रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है बच्चों? बताइए।
और अच्छी बात है बच्चों, कल भी आप लोग की क्लास होगी 2 घंटे की, तो ये आपका नेक्स्ट वीक का क्लास एडिशनली अभी मिल गया आप लोग को। तो हम लोग का रोटेशन का अच्छा पोर्शन कल भी कवर होगा, ठीक है ना। क्लास मिस मत करिएगा बच्चों, क्योंकि क्लास मिस होने के बाद अगली क्लास बहुत ही टफ होगी आपके लिए। आज की क्लास जो बच्चा मिस करेगा, पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलमोस्ट मिस कर जाएगा वो, ठीक है ना। प्लीज डोंट मिस द क्लास, इट्स ओनली माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। चलिए बच्चों, मुझे लॉजिक चाहिए आप लोग कैसे बनाते हैं डिस्क का। सर mr²। mr²/2। mr² तो रिंग का था ना बच्चों। डिस्क क्या है, जो मम्मी लोग रोटी बनाती है ना बच्चों, वही तो डिस्क है ना बच्चों। तो डिस्क का mr²/2 हो जाएगा। या आप लोगों ने पहले जो सीडी प्लेयर या डीवीडी प्लेयर जो होते थे बच्चों, वो आपका डिस्क है, ठीक है बच्चों। ये डिस्क का मतलब इसके अंदर कुछ मटेरियल भरा हुआ है, ऐसा नहीं कि बच्चों ये रिंग है। कैसे करोगे? 1 मिनट का टाइम और देता हूँ, ट्राई करिए। Yes, mi²/2. mr²/2। mr²/2. आ गया सबका mr²/2? किया क्या बच्चों आप लोगों ने? Sir, जो बच्चों हम लोग हाँ बोलिए। dm is m by pi r square into 2 pi r dr, and uh, position is r square. So we have to multiply those, and we will get 2m by r square integration of. चलिए बच्चों, मैं समझ गया। आपने जैसे बोला 2πr/dr से मल्टीप्लाई किया, तो आपको बोलना है सर पहले मैं छोटे से डिस्टेंस r पे गया सर, और एक छोटा सा dr थिकनेस का रिंग लिया मैंने, यही बोलना चाह रहे हो आप ना? Yes, sir. Yes. पहले ये बोलना चाहिए बच्चों कि हम सर स्मॉल डिस्टेंस r पे गए और एक छोटा सा रिंग लिया सर हमने। r पे जाके छोटा सा dr थिकनेस का रिंग लिया हमने बच्चों। r पे जाके छोटा सा dr थिकनेस का रिंग लिया। तो बच्चों हमने बोला कि अगर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का अगर आपका पता होगा तो आपका काम हो जाएगा। अच्छा बच्चों, मैं 2 चीजें बताना चाहता हूँ यहाँ पे आपको। जैसे मैंने रॉड की बात की थी, जैसे मैंने रिंग की बात की थी, वहां पे हम लोग लेमडा लेते थे बच्चों। लेमडा क्या है? लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी क्या है बच्चों? मास पर यूनिट लेंथ या मास पर यूनिट सरकमफेरेंस 2πr। लेकिन जैसे डिस्क की बात करूंगा, हॉलो स्फीयर की बात करूंगा, कोन की बात करूंगा, हॉलो कोन की, तो मास पर यूनिट एरिया लेंगे बच्चों, मास पर यूनिट एरिया लेंगे। तो मास आपका, अगर मैंने बोला कि इस डिस्क का कंप्लीट मास m है बच्चों, तो आप लिख सकते हैं सर πr² का मास m है सर। यूनिट का मास सर m/πr² होगा। अच्छा बच्चों, मैंने रिंग का आप लोग को जरूर बताया होगा कि कैसे निकालते हैं एरिया। बच्चों कैसे निकालते हैं, कोई बच्चा मुझे लॉजिक बताएगा? दो तरीके हैं बच्चों रिंग का एरिया निकालने के, एक सिंपल तरीका, एक कन्वेंशनल तरीका। आप किस तरीके से सर मुझे बताना हम चाहते हैं? इसे Sir, इसको काट। rectangle consider. हाँ सर, वेरी rectangle। गुड। आप एक छोटा सा कट लगा लो बच्चों इसको, और इसको आप फैला दो पूरा। तो अब आपने बोला सर इसका सरकमफेरेंस जो है सर, वो हो गया लेंथ मेरा का। 2πr सर, लेंथ के बराबर। और थिकनेस जो है सर dr। तो एरिया तो सर अब लिखना आसान हो गया 2πr/dr। बट कोई बच्चे बोलेंगे सर इसमें मजा नहीं आया, हमें हमें फील नहीं आई सर, कैसे कट करके फैला दिया आपने, हम इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, तुम्हें दूसरे तरीके से इमेजिन कराते हैं हम लोग।
तो बच्चों मैंने बोला बड़े वाले का आपका एरिया होगा पाई आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर बच्चों क्या, और छोटे वाले का पाई आर स्क्वायर का, दोनों का डिफरेंस ही तो बच्चों वो है ना। तो आप बोलेंगे सर पाई इसका आर स्क्वायर प्लस 2r dr प्लस dr का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। बच्चों पाई आर स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया क्या? बहुत दिया तो। तो अब ये बच्चों dr बहुत स्मॉल है तो इसको मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ, dr बहुत स्मॉल, इसको नेगलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये 2 पाई r dr हो जाएगा बच्चों ने, ये आपका हो गया रिंग का एरिया। बट इस मेथड से ना करके अगर आपको ये मेथड समझ में आ गई हो कि सर रिंग को ना हमने छोटा सा कट लगा दिया सर यहाँ से, और रिंग को ऐसे फैला दिया सर, ऐसे रिंग को फैला दिया, ये इमेजिनेशन वाले तरीके हैं बच्चों। तो इसमें मैंने बोला सर इसका सरकमफेरेंस जो है 2 पाई r इसके लेंथ के बराबर हो जाएगा सर, और ये थिकनेस dr इसकी सर एरिया मल्टीप्लाई करने से आ जाएगी 2 पाई r dr। ठीक है बच्चों, क्या कोई डाउट हो तो पूछिए। तो बच्चों मैंने बोला अब मेरा एरिया आ गया है रिंग का, तो मैं डीएम तो निकाल सकता हूँ इजीली बच्चों। तो रिंग का एरिया है 2 पाई r dr, तो ये हो जाएगा बच्चों m बाय पाई r स्क्वायर इंटू 2 पाई r dr। ये बच्चों r पाई से पाई कट गया बच्चों। एरिया क्या है, डीएम क्या है बच्चों, 2m स्मॉल r बाय कैपिटल R स्क्वायर dr बच्चों, ठीक है ना। ये मेरा एरिया आया, स्मॉल मास एरिया मैंने लिखा, मल्टीप्लाई करने से जो आया है डीएम आया बच्चों, डीएम इज इक्वल टू 2mr अपॉन r स्क्वायर dr। ठीक है बच्चों, अब मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे लिखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है बच्चों, रिंग का लिखना है ना। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो डीएम इंटू आर स्क्वायर होता है बच्चों। इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, ये 0 टू आई, यहाँ लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी बच्चों, लिमिट बोलोगे सर आप, पहले आप लिखे तो। थैंक यू। तो बच्चों आपका ये मास कहाँ से कहाँ तक आपको वैल्यू रखा मैंने 2mr डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर dr। मैंने क्या किया बच्चों, मैंने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है dm इंटू r स्क्वायर, तो dm की जगह 2mr अपॉन r स्क्वायर dr है बच्चों, और ये r स्क्वायर रखा है मैंने यहाँ पे, इसको मैं छोटा r लिख रहा हूँ, छोटा r ही लिखूं बच्चों, बार बार r स्क्वायर लिखा बच्चों। अब मैंने क्या बोला कि इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी बच्चों, आप मुझे बताइए तो, इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी। 0 to r. 0 to pi. Sorry, 0 to r. अच्छा बच्चों देखो, पहले कुछ बच्चे 0 टू r बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 0 टू पाई बोल रहे हैं, बट मुझे फिजिक्स में यही समझना है कि लिमिट क्या वेरी हो रही है बच्चों। देखिए यहाँ रिंग वेरी हो रही है ना बच्चों, तो मैं आपको अगर एक बात बताऊं कि छोटे छोटे रिंग को आप रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, तो क्या ये डिस्क बन गया क्या बच्चों, देखिए तो छोटे छोटे रिंग को रखा तो डिस्क बन गया ना। तो बच्चों मेरा एरिया वेरी कर रहा है, छोटे छोटे रिंग का क्या वेरी कर रहा है बच्चों, रेडियस वेरी कर रहा है ना। तो मैं बोलूं कि बच्चों 0 था जब, तो एकदम पॉइंट मास का रिंग, पॉइंट रिंग आया, उससे बड़ा उससे बड़ा, तो क्या वेरी हो रहा है बच्चों, एंगल वेरी हो रहा है कि रेडियस वेरी हो रहा है बच्चों। Sir, radius. तो बच्चों यहाँ पे dr भी यही बताता है ना। अच्छा अगर d थीटा होता तो आप 0 से पाई बोल सकते थे बच्चों, लेकिन मेरा dr है तो रेडियस वेरी हो रहा है, तो बच्चों यहाँ 0 से r लिखेंगे बच्चों। ठीक है, कोई डाउट क्या। तो बच्चों मैंने 2mr बाय r स्क्वायर को बाहर ले लिया, r स्क्वायर का इंटीग्रेशन r क्यूब बाय 3 होता है बच्चों। मैंने लिमिट भी रख दिया, स्मॉल r क्यूब बाय 3 होता है, लिमिट रखते 0 से r, अपर लिमिट रख के बच्चों मेरा एक चलेगा ना, ये देखो तो। Yes. बट बच्चों यहाँ पर एक चीज आपने ध्यान नहीं दी, तो वो क्या बात है बच्चों जो ध्यान नहीं दी हम आपने, एक चीज मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा किया है जो आपने नहीं ध्यान दिया बच्चों। सर वो दोनों आर सेम नहीं हो गए, बस स्मॉल आर। स्मॉल r, आपने 2mr बाई आर स्क्वायर कॉमन लिया बाहर। हाँ बच्चों, या ये r कॉमन ले सकते थे क्या बच्चों, क्योंकि यही तो वेरिएबल है मेरा, तो वेरिएबल को कभी कॉमन नहीं लेना है बच्चों। मैंने आपको यही चीज बताया, जान के मैंने मिस्टेक किया बच्चों कि आप समझें कि सर आपने यहाँ पे लिखा सही है, लेकिन सर आपने स्मॉल r को कैसे कॉमन ले लिया, 2mr इंटू r स्क्वायर dr है ना। सर सिर्फ ये कांस्टेंट है,
तो 2m/r² कांस्टेंट है सर। ये तो r³ आपका इंटीग्रेशन के अंदर ही रहेगा सर, आपने वहां पे एक r कॉमन भी ले लिया था एक्स्ट्रा सर। समझ में आई मेरी बात बच्चों आपको क्या? तो यहाँ पे 2m/r², इंटीग्रेशन ऑफ r³ का r⁴/4 होता है बच्चों। स्मॉल r⁴/4, 0 से r तक लिमिट रखेंगे तो 2m/r², r⁴/4 ये कट गया इससे बच्चों, तो 2mr²/4, तो इसी को हम mr²/2 लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना? कोई डाउट क्या बच्चों? डिस्क के लिए हमने रिंग एज्यूम किया, रिंग को हमने वेरी किया 0 से लेके r तक, मेरा आंसर आ गया, ठीक है बच्चों क्या? यस। आगे बढ़े? नहीं से इसमें लिख रहा हूँ। लिख लीजिए अच्छे से, और इसकी प्रैक्टिस करनी है। जिन बच्चों ने नहीं किया है प्रैक्टिस, सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एक बार घर पे जरूर निकाल लेंगे, क्योंकि आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा इस बार, कल ही की क्लास है बच्चों आप, ठीक है ना? कल आपकी 2 आवर की और क्लास होगी, तो आज ही रिवीजन कर लेना आप लोग बच्चों, ठीक है ना? आज का काम कल पे टालोगे तो हो नहीं पाएगा, वो स्कूल का बहुत सारा टेंशन रहेगा ना। स्कूल जा रहे हो क्या आप लोग? नहीं बच्चों? हाँ सर जा रहे। हाँ सर, वो अटेंडेंस के। तो आज ही कर लेना बच्चों, ठीक है? कल पता चला स्कूल से आए, सर की क्लास का टाइम हो गया, लो रिवाइज भी नहीं किया। ऐसा नहीं बच्चों, रिवीजन हर दिन होना चाहिए, क्लास के बाद तो जरूरी है। चलिए बच्चों आगे बढ़े। हाँ सर। अच्छा सर, देखिए आप, आपका एक बार दिखा सकते हो कि हमें कैसे वो मिला है mr² रिंग के लिए? mr² रिंग के लिए तो बहुत आसान है। अच्छा, ये डेरिवेशन दिखाना है क्या मुझे? दोनों हाँ हाँ डेरिवेशन दिखाना। तो देखो बच्चों, एक तो आसान तरीका था कि हमने बच्चों क्या किया। अच्छा, आसान तरीका मैंने बताया है ना आपको, यहाँ पे देखिए। एक ये तरीका था बच्चों कि यहाँ पे मेरा r² कांस्टेंट था, r कांस्टेंट था बच्चों। dm, मैंने dm का इंटीग्रेट, छोटे छोटे मास को इंटीग्रेट कर दिया बच्चों, तो mr² आ गया। ये तो एक मेथड था बच्चों। दूसरे मेथड में हमने क्या बोला? दूसरे मेथड में हमने बोला बच्चों, यहां से देखो, दूसरा मेथड में हमने बोला कि इस r पे जाके dr का एलिमेंट, थीटा पे जाके d थीटा का एलिमेंट लिया, तो उसका आपका लेंथ r d थीटा, मास पर यूनिट सरकमफेरेंस m/2πr इंटू r d थीटा, इससे r से r कट गया बच्चों, m/2π इंटू d थीटा। अब यहाँ से बच्चों हमने इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज किया, dm r², m/2π इंटू d थीटा r²। तो यहाँ पे बच्चों आपका सब कांस्टेंट है, थीटा वेरी कर रहा है 0 से 2π, 2π से 2π कट गया बच्चों, mr² हो गया, ठीक है क्या? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो sphere about its diameter, of a hollow sphere about its diameter, about its diameter, ठीक है बच्चों? चलिए चलिए बच्चों, कैसे करोगे?
6:15 चलेंगे। हाँ चलिए बच्चों बताइए। सुनिए बच्चों ध्यान से, जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है अभी मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा। घर पे प्रैक्टिस बच्चों आपको करनी है। देखिए ये आपका हॉलो हेमिस्फीयर है। आपको अभी फील नहीं आ रही कि हॉलो हेमिस्फीयर की बच्चों? थोड़ी सी फीलिंग के लिए मैंने आपको ऐसा दिखा दिया। अब लग रहा है हॉलो हेमिस्फीयर बच्चों? अब लग रहा है ना? इसका डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बच्चों। आपका इसका डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। आपने बोला सर आप पहले थीटा पे जाइए, आप पहले थीटा पे जाइए और सर एक डी थीटा का स्ट्रिप ले लीजिए सर। तो ये क्या बनेगा बच्चों, जरा देखिए तो, ये क्या बनेगा? क्या एक रिंग नहीं बनेगा बच्चों क्या? हाँ सर ये। तो अब मैंने बोला बच्चों अगर मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो सबसे पहले तो अपना मेथड वही है बच्चों कि टोटल अगर मैंने 4πr² का मास बोला m है, तो यूनिट का मास बच्चों m/4πr²। कोई बच्चा मुझे इस रिंग का मास बताएगा क्या बच्चों? अच्छे से बताना क्योंकि यहाँ पे गलती होती है और यहाँ पे आपको सेंटर ऑफ मास को भी रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है बच्चों। बताइए बच्चों। चलिए आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है तो रेडियस निकालने में कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों। ये वाला रेडियस है ना बच्चों, इसका रिंग का रेडियस ये वाला है ना। तो आप बोलेंगे सर ये रेडियस निकालना आसान है हमारे लिए सर, ये तो r cos थीटा हो गया सर। तो सर अगर रेडियस पता चल गई 2πr cos थीटा, सरकमफेरेंस हो गया सर, और ये थिकनेस तो r d थीटा हो गई सर, ये तो हमें पता है। इंटू r d थीटा ठीक लिखा बच्चों मैंने? देखिए तो मैंने रिंग का एरिया ठीक लिखा क्या? रिंग का रेडियस है बच्चों 2πr cos थीटा रेडियस है रिंग का बच्चों। सरकमफेरेंस ये हो गया क्या? थिकनेस, ये वाली थिकनेस आप कैसे लिखते? थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। यहाँ से बच्चों मैंने बोला ये m/4πr² इंटू ये बच्चों आपका क्या है 2πr² cos थीटा d थीटा ना बच्चों, cos थीटा ने। अब इससे ये कट गया बच्चों m/2 cos थीटा d थीटा। इसमें किसी बच्चों को डाउट क्या? अगर डाउट है तो पूछिए। सो ये 2 पाई cos थीटा इंटू आर टी थीटा कहाँ से आया, मतलब वो हाँ बच्चों देखिए, रेक्टेंगुलर मेथड से? देखिए ये जो रिंग थी ना बच्चों, इस रिंग का रिंग ऐसी थी ना रिंग, देखिए तो इसका रेडियस क्या था? तो आप बोलेंगे सर ये अगर आपका आर था सर, ये आर था और ये थीटा था सर, तो इसको मैं आर कॉस थीटा लिख सकता हूँ सर। तो सर रिंग का रेडियस भी तो मेरा आर कॉस थीटा था, ठीक है बच्चों क्या? अच्छा ये रिंग का रेडियस तो आर नहीं होगा ना बच्चों? देखिए ये जो रिंग मैंने सपोज की है इसका रेडियस तो आर तो नहीं होगा ना बच्चों, इसका रेडियस तो ये होगा ना बच्चों, ये। और ये क्या होगी बच्चों? ये वही डिस्टेंस होगी ना जो बच्चों ये डिस्टेंस है, और ये तो आपकी आर कॉस थीटा है ना बच्चों, ठीक है ना? तो ये बच्चों आपका स्ट्रेट करके स्ट्रिप फैला दिया आपने। सरकमफेरेंस कितनी होगी बच्चों इसकी 2πr cos थीटा, और ये थिकनेस कितनी है बच्चों इसकी r d थीटा, इसलिए मैंने लिखा 2πr cos थीटा सरकमफेरेंस r d थीटा थिकनेस, ठीक है बच्चों? ठीक है, अच्छा यस सर, गॉट इट। ओके। कहीं कंफ्यूजन हो बच्चों तो पूछिए, अगर कंफ्यूजन है तो फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से।
आपने बोला सर आप थीटा पे गए और आपने डी थीटा का एक स्ट्रिप ले लिया सर, तो ये कुछ ऐसा आया था ना स्ट्रक्चर बच्चों आपका, देखिए तो ये रिंग कुछ ऐसी आई थी ना आपके बच्चों, ठीक है बच्चों, ये रिंग, इसका रेडियस आपको लिखना था बच्चों, ठीक है ना। तो इसका रेडियस आप बोलेंगे सर आर का कंपोनेंट ये वाला जो होगा ना सर, आर कॉस थीटा होगा, इसका मतलब सर इसके पैरेलल ये भी आर कॉस थीटा। ये बच्चा फिर से डिस्कनेक्ट हो गया, ये बच्चों आर कॉस थीटा है, ठीक है ना बच्चों। आप बोलेंगे ये सर अगर ये आर्क लेंथ है सर, तो सर ये तो आर डी थीटा होगा सर। तो आपको अब ये रिंग को स्ट्रेट करके फैलाया आपने बच्चों, तो ये हो गया आपका 2 पाई आर कॉस थीटा सर, कंफरेंस इसका, और आर डी थीटा हो गई थिकनेस इसकी बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? ठीक है। यस सर। अब बच्चों मैंने बोला कि अगर आपको इसके बाद क्या चाहिए बच्चों, तो आप बोलेंगे सर अब तो मैं इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर ही लिखूंगा, क्योंकि सर बच्चों ये रिंग है बच्चों, रिंग का अगर मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा तो आप क्या लिखोगे बच्चों, डीएम इंटू आर स्क्वायर। बट इस रिंग के लिए बच्चों डिस्टेंस कौन सी लोगे आप, रिंग के लिए डिस्टेंस कौन सी लोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाली बच्चों। रिंग के लिए आर एक्सिस ऑफ साइन रोटेशन, बोलो बोलो बोलो, आर साइन थीटा। आर साइन थीटा लोगे, सोच लो बच्चों, ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, आर कॉस थीटा हो गया। आर कॉस थीटा ही लोगे बच्चों, यही तो आपका देखिए। अच्छा हमने स्ट्रिप ऐसा पकड़ा है बच्चों, स्ट्रिप ऐसा पकड़ा है, और ये एक्सिस ऑफ ये वाला डिस्टेंस लेते हैं ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आपने बोला सर ये हो गया आर कॉस थीटा। अच्छा कैपिटल आर लिखा है क्या मैंने, कैपिटल आर कॉस थीटा, कैपिटल आर कॉस थीटा होल स्क्वायर इंटीग्रेट, यही तो हो गया डी आई बच्चों ना। अब डीएम आपने पहले निकाल चुके हैं बच्चों, m/2 कॉस थीटा डी थीटा इंटू आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन। अब बच्चों अच्छा मुझे बताओ यहाँ पर, इस टाइप के डेरिवेशन मैंने पहले कराए हैं आपको, थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, जो बच्चे ने अगर सिंसियरली वो समझा होगा बच्चों, ये सही आंसर देगा मुझे, थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा बच्चों। 0 to π। 0 to π। वेरी गुड बच्चों, 0 to π आप बोल रहे हो, इसका मतलब है आपने अभी कंफ्यूजन में है आप थोड़े से। तो 0 to π/2 होगा, तो पाई क्यों? 0 to π/2 फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन है बच्चों क्या? 0 to 2 pi। ना, सोचो बच्चों सोचो, थीटा कहां से कहां तक वेरी कर सकता है। फिर π/2 to π सॉरी। -π/2 से π/2। अब सुनिए बच्चों क्यों, अब सुनिए बच्चों क्यों, थीटा यहां जब गया बच्चों, तो आपका ये पॉइंट कवर कर लिया ना, जब थीटा यहां गया तो ये तो वैल्यू π/2 थी बच्चों, जब थीटा यहां गया बच्चों तो ये पूरा कवर कवर करता हुआ ये आया होगा ना बच्चों, ये तो ये बच्चों तो -π/2 थी, तो इंटीग्रेशन की लिमिट बच्चों -π/2 से π/2 हो जाएगी। अब एक बात और ध्यान से सुनना मेरा, कभी कभी बुक में बच्चों क्या करते हैं, वो बच्चों ये वाला थीटा लेते हैं बच्चों, ये वाला थीटा, यहाँ बताओ थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा बच्चों, यहाँ थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा बच्चों, और ऐसा 0 स्ट्रिप से लेंगे पाई। तो यहाँ बच्चों थीटा 0 से पाई तक वेरी करेगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई बच्चों? जिन बच्चों को नहीं समझ में आई फिर से पूछ लीजिए बच्चों। मैंने बोला अगर थीटा ये होगा बच्चों, तो यहाँ पर पहुंचे तो आप π/2 हो चुका होगा थीटा आपका ना, देखिए जब यहाँ पे पहुंचे तो, जब इधर पहुंचे तो थीटा -π/2 हो चुका होगा बच्चों। इसलिए जब थीटा ऐसा लेते हैं जो मैंने अपने केस में लिया है बच्चों, तो -π/2 से π/2। अगर HC वर्मा ने ऐसा लिया तो 0 से पाई करेंगे बच्चों। ठीक है मेरी बात क्लियर है? सर मेरा एक क्वेश्चन था। प्लीज आस्क। सर आपने एक्सिस को तो अलोंग द डायमीटर लिया था, हाँ फिर सर जो हम एलिमेंट चूज किया है उसका तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द डायमीटर ही होगा ना। एक्सिस को मैंने ये लिया था, ठीक है बच्चों। अच्छा। अब मैंने यहां से गया पॉइंट में, ये स्ट्रिप मैंने ऐसा लिया था बच्चों, ठीक है ना, ये स्ट्रिप मैंने लिया था ऐसा, ठीक है ना।
जिसकी वजह से वो रिंग बना था। ठीक है बच्चों, अब इस स्ट्रिप, मतलब मैं अगर बोलूं कि ये वाला स्ट्रिप था, इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने ये लिया था बच्चों, तो इसका मैंने लिखा था। अब मैं इस थीटा को वेरी कर रहा हूं बच्चों, -π/2 से π/2 तक, तो पूरा रिंग कवर हो जा रहा है। ठीक है क्या? जी सर। कुछ कंफ्यूजन अभी भी? नो सर। चलिए बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। सॉल्व करने के लिए मैंने आपको कुछ ट्रिक बताया था बच्चों, तो क्या वो ट्रिक आप मुझे बताओगे वापस, कि मुझे ही बताना पड़ेगा ट्रिक? कोई बच्चा मुझे बताओ। सर बोलो सर, m/2 को बाहर कर दीजिए सर, r² को बाहर कर दीजिए सर, cos क्यूब थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन के अंदर रहा सर। ठीक है क्या बच्चों? -π/2 से π/2। अब बच्चों मैंने बोला di तो है 0 to i बच्चों, तो ये i है, mr²/2 cos क्यूब थीटा बच्चों। cos क्यूब थीटा को कोई बच्चा लिखेगा सर 3 cos थीटा - 4 cos क्यूब थीटा, मत करो वो सब। मैंने बोला बच्चों इसको लिखो cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा। ठीक है बच्चों, याद आया है वो मेथड आपको? अब मैं क्या करने वाला हूँ नेक्स्ट, कोई बच्चा मुझे बताएगा? तो मुझे पता चलेगा कि कोई बच्चा सिंसियरली पढ़ाई भी करता है। बताओ तो बच्चों, मैं क्या करने वाला हूँ अब? मैं ये पहले करा चुका हूँ सेंटर ऑफ मास में, डेरिवेशन में, सेंटर ऑफ मास में बहुत सारी चीजें बताई है आपको। कोई बच्चा मुझे बताएगा सर अगला स्टेप ये लिखिए। बच्चों cos स्क्वायर थीटा को 1 - sin स्क्वायर थीटा नहीं लिखते थे क्या? इसको मैं d ऑफ sin थीटा नहीं लिखता था क्या बच्चों? याद आया आपको क्या? हाँ सर, हाँ याद? सर। तो बच्चों इसका मतलब है आप लोग रिवाइज नहीं करते हो। आप बच्चे तो अच्छे हो, लेकिन रिवाइज तो करना चाहिए बच्चों। और एक बार जो पढ़ लिया ना, वो दोबारा दिमाग में आ जाना चाहिए, इससे आसान हो जाएगा इंटीग्रेशन आपका। बोलिए इंटीग्रेशन क्या लिखूं बच्चों? इंटीग्रेशन बच्चों आप लोग बोलिएगा, बोलिए क्या लिखूं? बोलिए बोलिए। क्या मैं 1 का इंटीग्रेशन साइन थीटा के साइन थीटा हुआ क्या बच्चों? और ये साइन क्यूब थीटा/3 हुआ क्या? याद आया बच्चों आपको? अरे अगर ये x है बच्चों, तो ये 1 - x² का तो डिफरेंशिएशन है, तो x - x³/3 वही तो लिखा है मैंने बच्चों। ठीक है ना? यस सर। अब बच्चों लिमिट आपकी -π/2 से π/2 तक है। तो आपने बोला सर mr²/2 साइन π/2, तो सर 1 हो गया, माइनस ये 1/3 हो गया सर। ये तो सर अपर लिमिट की बात हुई सर, माइनस सर लोअर लिमिट जब -π/2 रखोगे सर, तो ये हो गया सर -1, और ये सर माइनस था पहले से सर, ये प्लस हो गया 1/3। ठीक है क्या बच्चों? देखो तो आप बोलोगे सर ये तो mr²/2 है, ये 1 - 1 2 हो गया, 1 -1 माइनस सर 2/3 आ गया सर। हाँ बोलिए बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप क्या? हाँ सर, 2 m r² by 3 आ रहा है आंसर। That is the right answer. Very good. 2mr² by 3 is the moment of inertia of hollow. और जहां से मैंने बच्चों लेक्चर की स्टार्ट करी थी, वहां लेक्चर को खत्म करूंगा। मतलब आपको निकालना है बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर, अबाउट इट्स डायमीटर। और मैंने क्या बोला था बच्चों, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है? सॉलिड स्फीयर का। तो वही तो आपको निकालना है बच्चों। चलिए ट्राई कीजिए तो बच्चों। सर ये क्या 2 m r² by 5 होगा? 2/5 mr², यस, बट आपको निकालना है बच्चों। ठीक है ना?
सर आप तो स्क्रीन को स्क्रॉल अप कर सकते हैं। चलिए बच्चों, निकाल दिया आप लोगों ने? सर आप तो स्क्रीन को स्क्रॉल अप कर सकते हैं। स्क्रॉल अप बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए, और अब आप यहां से देखो, हाँ सर इतना तो हो गया। चलिए बच्चों आगे बढ़े। हाँ सर। आगे बढ़े, जल्दी लिखिए, आप लिखिए। हाँ सर होगा इतना तो। ये भी हो गया। नहीं सर ये वाला जगह चाहिए। ठीक है, थोड़ा और ऊपर करूं क्या? हाँ सर। ठीक। हाँ सर ठीक है एकदम। इसके बाद बच्चों आप लोगों की क्लास कितने बजे से होती है? 6:20 से। मैथ की क्लास है ना अभी? यस सर। चलिए बच्चों, आपने लिख लिया ये वाला? हाँ सर पूरा हो गया। चलिए, तब आपको सॉलिड स्फीयर के लिए डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। सुनिएगा ध्यान से। अच्छा, आप लोग कर रहे हैं क्या पहले? बच्चों बहुत आसान है सॉलिड स्फीयर, जल्दी से करिए। चलिए बच्चों सुनिए ध्यान से सारे बच्चे। ये आपका एक सॉलिड, इसको बनाने के लिए मैंने आपको वही सॉलिड स्फीयर है बच्चों ये इस बार। ठीक है ना, मतलब कुछ ना कुछ तो मटेरियल होगा इसमें बैच में।
अब बच्चों सुनिएगा ध्यान से, मैंने क्या किया बच्चों, एक छोटे से आर पे जाके डी आर थिकनेस का मैंने ले लिया एक हॉलो हेमिस्फेयर, हॉलोस्फेयर। आर पे जाके, ये कैपिटल आर था ना बच्चों, मैंने आर पे जाके डी आर का हमने एक हॉलोस्फेयर ले लिया बच्चों, ठीक है ना। अच्छा मुझे बताओ बच्चों, मैं क्या लिखूं, यूनिटरी मेथड से क्या लिखूं? अच्छा लेमडा सिग्मा रो, सिग्मा हम लोग हॉलोस्फेयर के लिए ले चुके हैं बच्चों, डिस्क के लिए ले चुके हैं हम लोग, इसके लिए क्या लेना चाहिए बच्चों में? इसके लिए रो लेना चाहिए, मास पर यूनिट वॉल्यूम बच्चों। तो आप ऐसा बोल सकते हैं बच्चों कि 4/3 पाई आर क्यूब का मास है m, 1 का क्या होगा बच्चों, m/4/3 पाई आर क्यूब। और आपकी थिकनेस कितनी है बच्चों इसकी? आप पहले बोलेंगे सर एरिया तो पहले बताइए, तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर है एरिया बच्चों इसका, आर पे जाके डी आर थिकनेस, तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर का आपने बोला m3m/4 पाई आर क्यूब इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बच्चों। 4 पाई से 4 पाई कट गया बच्चों, 3m/r क्यूब इंटू आर स्क्वायर डी आर, यही तो बचा है बच्चों मेरा, देखिए तो ठीक है। जी सर। यही बचा है ना बच्चों। हाँ सर, यही आ रहा। अब मैंने बोला, अब सुनिएगा लॉजिकली कहाँ पे गलत होते हैं हम लोग बच्चों। मैं अगर लिखता हूं डी आई, डी आई क्या लिखूंगा बच्चों जरा बताइए तो, सोच के बोलना आप लोग। चलिए बोलिए बच्चों, सोच लिया आपने, बोलिए डी आई क्या लिखूंगा बच्चों में? सर dm into r square small r square। यही गलती होती है बच्चों, इसीलिए मैंने बोला था आपको, आप सोच के बोलिएगा बच्चों। क्या ये रिंग है क्या? रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नो डीएम, सर। तो अब क्या लिखेंगे बच्चों बोलिए तो? कोई बच्चा मुझे बता देगा तो मुझे समझ में आएगा कि नहीं आप लोग सही ही समझ रहे हो। डीएम इंटू आर स्क्वायर तो तब लिखते थे बच्चों जब हम लोग रिंग लेते थे ना, स्ट्रिप का डीएम इंटू एक्स स्क्वायर लिख देते थे बच्चों। यहाँ पे हमने लिया क्या है पहले ये बताओ तो सर बच्चों। यहाँ पे क्या हम लोग dm into r square 4 बोल सकते हैं? नहीं बच्चों, अच्छा क्या लिया है हमने पहले ये बताओ तो, व्हाट वी हैव कंसीडर्ड? वॉल्यूम। हॉलो सर hollow स्फीयर square। कंसीडर किया ना बच्चों। हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बच्चों? ओके सर, ओके सर, गॉट इट सर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 2/3 dm इंटू आर स्क्वायर। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, मैं इसको 3 स्टार देना चाहता हूँ, ठीक है बच्चों, मैं इसको 3 स्टार देना चाहता हूँ बच्चों। इसमें किसी बच्चों को कंफ्यूजन तो बोलिए बच्चों। मैंने एक हॉलो हेमिस्फेयर पकड़ा बच्चों, हॉलो हेमिस्फेयर का डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों होता है 2/3 mr स्क्वायर। लेकिन आप लोग के माइंड में क्या चलता रहता है हमेशा कि dmr स्क्वायर। बच्चों ये तो मैंने लास्ट 10 साल से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ ना बच्चों, मैं यही पूछता हूँ, यही बच्चे फंसते हैं और यही गलती होती है। तो बच्चों ये जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने सिंपल सा पूछा कि अगर आपने स्ट्रक्चर क्या रखा है देखो, रिंग रखा है तो dmr स्क्वायर रख दो, अगर आपने हॉलो हेमिस्फीयर रखा है तो 2/3 dmr स्क्वायर रखो बच्चों। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैंने लिखा 2/3 dm के जगह पे बच्चों हमने क्या किया 3m/r क्यूब इंटू आर स्क्वायर, और एक और आर स्क्वायर है बच्चों, ठीक है, इंटू डी आर, ठीक है क्या बच्चों, देखिए तो अब इंटीग्रेट कर दीजिएगा बच्चों। अच्छा लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी बच्चों, बता कोई बच्चा लिमिट बताओ तो, कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी? इसमें गलती नहीं होती है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा बच्चों देखो तो। 0 to 0 r। से पाई। देखो मैंने बोला, अच्छा 0 टू पाई जो बच्चे बोल रहे हैं बच्चों, ये डी आर का वेरी के जब करेंगे ना बच्चों तो 0 से आर बोलना चाहिए हमें, ठीक है बच्चों क्या? तो बच्चों छोटे 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 हॉलोस्फीयर को रखोगे आर रेडियस तक तो बन जाएगा ना बच्चों ने। तो ये 3 से तो 3 कट गया बच्चों में, एक बार फिर से इसमें ऑप्शन तो है, 3 से 3 कट गया बच्चों क्या,
तो आपने बोला सर ये तो आपका 0 से I DI आई हो गया, 2 सर बाहर कर लीजिए सर, R³ बाहर कर लीजिए सर, कैपिटल R³ बाहर किया बच्चों, M बाहर कर लीजिए सर, R⁴ का इंटीग्रेशन होता है R⁵/5 बच्चों। मैं लिमिट को भी साथ ही रख दूं बच्चों, सर 2/5 है मैथ 2/5। यहीं तो मेरा स्टार्ट हुआ था लेक्चर बच्चों। मैंने बोला था कि हॉलो और सॉलिड, मेरा पहला क्वेश्चन था बच्चों, हॉलो और सॉलिड स्फीयर में से किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है? तो आपने बोला था सर सॉलिड का ज्यादा होता है। देखो ना सॉलिड का कम हो गया बच्चों, 2/3 होता है हॉलो का, 2/5 होता है सॉलिड का। तो किसको रोटेट करना आसान होगा बच्चों, किसको रोटेट करना आसान होगा? सर सॉलिड स्फीयर सॉलिड को आसान होगा रोटेट करना। तो आप याद रखिएगा बच्चों कि सॉलिड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, तो या तो 2/3 या तो 2/5 होगा बच्चों। 2/5 सॉलिड का होगा। ठीक है बच्चों, क्या मैं आज इतना ही रखता हूँ, अगले क्लास में कुछ और बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेंगे हम लोग बच्चों, ठीक है ना? सर एक डाउट था सर सर सॉलिड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो स्फीयर से क्यों क्यों ज्यादा हो रहा है? कम क्यों होता है, ये आपका डाउट था ना? हाँ सर यही डाउट है ना बच्चों? हाँ अच्छा, सॉलिड में मास इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट होते हैं बच्चों, ठीक है ना? और हाँ हॉलो में मास आपके डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होते हैं, जहां पे आपके सॉलिड में मास होते हैं। तो मास अगर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली है बच्चों, तो उसको रोटेट करना आसान होगा ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल दिया, आप लोगों को शायद समझ में आ जाए बच्चों। एक अंडा ले लीजिए, एग, एग है ना बच्चों। एग जो बच्चों बॉयल एग होता है, और एक रॉ एग होता है। रॉ एग मतलब जैसे कि जस्ट दुकान में रखा हुआ जो एग है, आप दोनों में से रोटेट करिए, कौन आसानी से रोटेट होगा बच्चों? सर बॉइल्ड एग ओके क्योंकि वो सॉलिड है बच्चों, उसका हाँ मोमेंट ऑफ सर हाँ इनर्शिया का। अब क्लियर हुआ बच्चों आपको? हाँ सर हाँ चलिए बच्चों, आज के लिए इतना रहे। थैंक सर यू बच्चों। सर वो एक क्वेश्चन था, वो आपने जो ट्रिपल स्टार हाँ, से फिर वो से बोलिए लिखाया बच्चों, ना क्या बोल रहे वो, हो? सर आपने जो ट्रिपल स्टार देकर लिखा है ना, वो थोड़ा और एक बार समझा देंगे कि ऐसा क्यों हो हाँ रहा है? बच्चों देखिए, बिल्कुल बिल्कुल मैं समझाता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। बच्चों मैंने सॉलिड, एक मैंने क्या किया था बच्चों, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने के लिए आर पे जाके बच्चों हमने डी आर का हॉलो स्फीयर पकड़ा था, ठीक है ना? आप मुझे बता दो हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सर हॉलो का तो 2/3 mr² था। तो बच्चों अगर मैंने यहाँ पे डीएम मास हॉलो का पकड़ा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे आप? क्या आप mr² लिख दोगे क्या? डीएम इंटू r² लिख दोगे? ये सही होगा क्या? नहीं सर। क्या लिखना चाहिए आपको? तो फिर तो सर 2/3 dr टू square। बाई थ्री DMr²। ठीक है बच्चों, ऐसा लिखना चाहिए ना? आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, मुझे थोड़ा माइक के नजदीक आके बोलेंगे क्या? हाँ सर, यही लिखना होगा। ये कंफ्यूजन था ना बच्चों? यही कंफ्यूजन था ना? यस सर। चलिए बच्चों, थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर। आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा आज ही बच्चों, कल पे मत छोड़िएगा, कल की क्लास आगे बढ़ जाएगी फिर। थैंक यू।